Now, we will just move ahead. Can you hear my voice, students, properly? Okay. Now, we will just start with the actual concept about your vector and raster over here. Okay. Now, over here, I think किसी का तो mute voice mute पे नहीं है because okay. चलो. अभी यहाँ पे देखो, we have something known as a point, line and polygon. Now, when we talk about point, line and polygon, as I told you, point, line and polygon is nothing but your rows, your point is represented by a single point. Line भी कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी उसको arc भी बोलते हैं. And then we have something known as a polygon. Okay. Now, remember one thing over here, students. Whenever you're talking about point, line and polygon, ये हो गया हमारा spatial data. So जहां पे अभी सबको cursor दिख रहा है, this is nothing but my spatial data. ठीक है. Now, when I talk about this attribute data over here, देखो attribute data कैसे दिखाया गया है, rows, columns and size. 3 पॉइंट है. आईडी को हम लोग ने कैसे किया है, 3 पॉइंट से डिनोट किया है, 1 रेड, 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन. ये उसका लोकेशन हो गया. लेकिन अगर मुझे उसका और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक स्टोर कर रहा है तो मैं उसको वो डीबीएमएस में स्टोर कर दूंगी. Is everyone okay till this much, students? So this is nothing but your line. Again, three colors have been shown so that it can be easy for you people to understand it. Then when I talk about line over here, remember, 3 line hai, so 3 records will be there, 3 rows will be there for 3 different lines. Lines को arc भी बोलते हैं. Then we have polygon. Polygon 3 है, इसलिए 3 rows है. और उसका जो जो टाइप और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, एक्स्ट्रा डेटा कुछ रखना है तो हम लोग वो डीबीएमएस में रखेंगे. Is everyone okay till this much, students? Okay. Any doubt over here, students? No. No, ma'am. Okay. चलो, we will just move ahead now. अभी यहाँ पे देखना, ये तो हम लोग ने अभी से स्टार्टिंग किया है. अभी आगे चल के हम लोग और देखने वाले हैं यहाँ पे. Now there is some definitions over here. There is something known as a georeference data. Okay. Now when we talk about georeference data, what is georeference data? Georeference data का मतलब होता है अर्थ पे कुछ तो लोकेशन उसका रहेगा. जो भी हम लोग डेटा बोलते हैं ना, और बोलते हैं इसका georeference data बताओ, मतलब उसका कुछ तो लोकेशन है अर्थ पे. That is nothing but your georeference data. The best example of georeference data, okay, अभी मैं अगर एग्जाम्पल बताने जाऊँ इन जियो रेफरेंस डेटा, द बेस्ट एग्जाम्पल इज नथिंग बट योर, लेट्स से हम लोग एक कंट्री की बात कर रहे हैं. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री ऑफ जापान विच इज अ लोकेशन. तो हम लोग ने जापान कहीं पे तो अर्थ पे लोकेटेड है. सो दैट इज नथिंग बट योर जियो रेफरेंस डेटा. ओके. सो जो भी डेटा है, जो भी अर्थ है, उसका कुछ तो लोकेशन रहेगा. लोकेशन रहेगा on the earth, something known as a georeference data. Then we have a geo information science. Geo information science का मतलब होता है तुम लोग स्पेशल डेटा के साथ कैसे डील करते हो.
ठीक है। अभी एक बात याद रखना है, यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रीजन वाई डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज अभी एमसीक्यूज में यही सब क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्राई टू स्टे प्रेजेंट थ्रू आउट द एंटायर सेशन। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं जियो रेफरेंस डेटा का। Georeference data, if I talk about, there are four parts in the georeference data. First is data capture and preparation. एक बात याद रखना है, data is not your normal everyday data. Employee का data, customer का data, ये सब के data के बारे में हम लोग यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं. See over here, if I talk about this, okay, this is nothing but my data. एट्रीब्यूट डेटा एंड दिस इज नथिंग बट माय स्पेशल डेटा। ऐसे टाइप के डेटा के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जियो रेफरेंस डेटा, जैसे मैंने बोला था कुछ तो अर्थ पे लोकेशन रहता है, जैसे जापान का बोला था, वैसे ही वो डेटा को हमें क्या करना है, कैप्चर करना है और प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर क्यों करना है? क्योंकि डेटा उसको हम लोग को कोई तो डेटाबेस में स्टोर करना है, कोई तो एक फॉर्मेट में स्टोर करना है। That's why we have a data capture and preparation. Then we have data management. मैनेजमेंट मतलब क्या, उसको जो हम लोग ने डेटा लिया है, जैसे अर्थ का डेटा लिया है, लोकेशन का डेटा लिया है, टेम्परेचर का डेटा लिया है, तुम लोग उसको कैसे स्टोर करोगे, दैट इज नथिंग बट योर डेटा मैनेजमेंट। वो हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि कैसा मैनेज करने वाले हैं। एंड देन वी हैव अ डेटा मैनिपुलेशन। व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन स्टूडेंट्स? डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेरीज रन करेंगे। अभी क्वेरीज बोला तो सबको लगेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाला क्वेरी। नो, we will not be doing with that normal SQL queries. हम लोग हमारे डेटाबेस में GIS में we will be using QGIS queries. Okay? QGIS queries ये सब क्या होता है, ये हम लोग आगे चल के देखने ही वाले हैं। ठीक है। Now, after that, we have data presentation. What is data presentation? Data presentation का मतलब होता है तुम लोग जो डेटा ले रहे हो उसको तुम लोग कैसे प्रेजेंट करोगे, in what format you will present it. Will it be in a map or will it be in the printout, will it be in a word format? So this is nothing but your geo reference data. Is everyone okay? Now, before going on, let me write one MCQ and उसका आंसर बता देना स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे एक MCQ बना देती हूँ, जल्दी से उसका आंसर बना देना यहाँ पे। Okay, I am putting 4 MCQs over 4 options. Okay. Okay. Okay, okay. I will just repeat. अभी मैं एक MCQ देती हूँ, उसके बाद I will just quickly repeat. Okay. ओके अभी मैंने यहाँ पे एक MCQ बताया है, इसका आंसर बता दो स्टूडेंट्स। And third one. Yeah. Okay. Everyone just अभी आंसर तो बता दिया, but just everyone also please quickly write it down. Okay, it was pretty easy. ठीक है। अभी इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। Now when we talk about this spatial data, the answer is third students because बाकी सब wrong है। Vector data matrix format में data store नहीं करता है because vector data stores the data in point line polygon. Spatial data extra feature store नहीं करता, extra feature attribute data store करता है and raster data stores in matrix format. Okay. Now when we talk about georeference data, मैं इसका फिर से एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। georeference data का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे,
whenever we are talking about जियो रेफरेंस डेटा मतलब जो डेटा अर्थ पे है उसका लोकेशन, मतलब कुछ तो ऐसा डेटा है जो अर्थ से रिलेटेड है। जैसे जापान मैंने कंट्री बोली, वो अर्थ से रिलेटेड है क्योंकि वो अर्थ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो उसका क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे, वी विल स्टोर इट्स क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे, दैट इज नथिंग बट डेटा कैप्चर। कौन से फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, डीबीएमएस में स्टोर करेंगे या फिर डिफरेंट फॉर्मेट, दैट इज नथिंग बट योर डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, देन वी विल बी परफॉर्मिंग डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है यू विल बी रनिंग योर एसक्यूएल, योर स्पेशल क्वेरीज बेसिकली। ये स्पेशल क्वेरीज ना हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे एंड वी विल सी एट द एंड ऑफ यूनिट 2। हम लोग सिर्फ सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज समथिंग नोन एज अ स्पेशल क्वेरीज। एंड देन वी हैव अ डेटा प्रेजेंटेशन। व्हाट इज डेटा प्रेजेंटेशन? डेटा प्रेजेंटेशन का मतलब होता है वी विल बी डिस्प्लेइंग द जीआईएस डेटा इन एनी फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट। वो मैप भी हो सकता है या फिर इट कैन बी इन अ पेपर फॉर्मेट और इट कैन बी इन अ एक्सेल फॉर्मेट। ओके, इज एवरीवन ओके टिल दिस मच स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, now just 1 second, I'm just presenting again. Okay, now यहाँ पे now the next thing that we will be starting with is something known as a geographic phenomena. Again a very important concept, geographic phenomena. ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम थ्योरी पेपर में। अभी तक तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसके अलावा यूनिट 1 और 2 में पूछने जैसा बहुत कम क्वेश्चंस हैं। So now we have something known as a geographic phenomena. Now when we talk about geographic phenomena, what is geographic phenomena? फिनोमेनम जब भी हम लोग बोलते हैं, एक बात याद रखना है, हम लोग लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोकेशन मुझे पसंद आया, लेट्स से मुझे कोई कंट्री पसंद आई, तो सबसे पहले तो उसकी 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कैन इट बी नेम्ड, मतलब उसका कुछ तो नाम होना चाहिए, उसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्योंकि कैसा रहता है, हमें बहुत सारे लोकेशंस पता है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लोकेशन का कुछ ना कुछ नाम होगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट इट शुड हैव अ पर्टिकुलर नेम एंड अ लोकेशन। ओके, देन इट शुड बी जियो रेफरेंस्ड। जियो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, नाम जब भी हम लोग बोलते हैं, जैसे जापान इज अ कंट्री, उसका नाम हो गया, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इज इट लोकेटेड इज एन आइलैंड, इज इट लोकेटेड एट ईस्ट part of the earth, it is located at the south part of the earth, that is nothing but the spatial data, उसका एट्रीब्यूट लेट्स से आई कैन टॉक अबाउट इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड स्टफ। तो जियो रेफरेंस में ना क्या आ जाता है, उसका स्पेशल एट्रीब्यूट डेटा। एंड दूसरा चीज आती है यहाँ पे टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल ना ये एक ऑप्शनल पार्ट है। टाइम इंटरवल क्यों लिया गया है पता है क्या? क्योंकि अभी फिलहाल तो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करी तो अभी इंडिया में इट इज राइट नाउ 5:30, at some other place it can be at some different time, so that's why time interval is very important. लेकिन कभी कभी ना टाइम इंटरवल ऑप्शनल भी रख देते हैं, नहीं भी डालते हैं, देन आल्सो इट्स ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग ना एक वी विल सी वन एग्जांपल अबाउट जियोग्राफिक फिनोमेना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जियोग्राफिक phenomenon का one example, let's say I'm talking about a particular location. Let's say I'm talking about a particular country, particular UK का एक particular place. Let's say I'm talking about Edinburgh. ठीक है, अभी ये जो आइडनबर्ग है ये क्या है, ये लोकेशन है। सो मैंने जैसे बोला था जियोग्राफिक फिनोमेना कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट थिंग 3 things: डिस्क्रिप्शन, देन जियो रेफरेंस, देन टाइम इंटरवल। सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, उसका नाम, जैसे ये आइडनबर्ग है,
उसका जियो रेफरेंस मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है. लेट्स से आई कैन से इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ of London, or it is located to the south of London. It's in between things. It's near to Thames River. कुछ भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, but it should be related to the location. ठीक है. अभी लास्ट में आता है टाइम इंटरवल. लेट्स से राइट नाउ करंटली इन लंडन करंटली राइट नाउ द टाइमिंग इज लेट्स से 2 o'clock. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पे 2 o'clock ही बताया, लेकिन इतना ही नहीं होता है. इट्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट लाइक 2 o'clock, मिनट्स, सेकेंड्स एंड स्टफ. So this is nothing but your geographic phenomenon. Okay, is everyone okay till this, my students? Yes, ma'am. Okay, now then we have a geographic field. अभी ना यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि geographic phenomenon के कितने types होते हैं. ये तो हो गया अपना एक normal geographic phenomenon. अभी geographic phenomenon के कितने types होते हैं understand करना. When we talk about geographic phenomenon, what are the different types of geographic? Okay, so if I talk about geographic phenomenon, the different types is nothing but first is nothing but geographic field, and second is nothing but geographic object. So when we talk about geographic phenomena, first is geographic field and second is geographic object. Now when we talk about geographic field का मतलब क्या होता है? अभी geographic field और geographic object में भी differentiation है, तो हम लोग वो धीरे धीरे करके देखते हैं. Now when we talk about geographic field में भी ना types है. Which are the types in geographic field? पहले वो देख लेते हैं, then we will go to the detailed concept. Okay, so now when I talk about geographic field is of two types. First is nothing but your discrete and continuous. And second, geographic object के बारे में बात करें तो उसका भी ना different types are there. Okay, वो different types हम लोग बाद में देखते हैं, but understand करना geographic field के दो important terms होते हैं, discrete and continuous. Okay, is everyone okay till this, my students? Say yes or no? Okay, okay. अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसका definition देख लेते हैं. Now when we talk about geographic field का मतलब क्या होता है? जितना भी स्टडी एरिया है, हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा. Now what is study area? जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला है, let's say जैसे for example अभी let's say currently right now I'm at गोरेगांव. तो गोरेगांव is my study area क्योंकि मैंने गोरेगांव को ही लिया है, बाकी किसी को लिया नहीं है. तो गोरेगांव में हर एक पॉइंट अगर मैंने लिया ना, तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा. दैट इज जियोग्राफिक फील्ड. ओके, सो यहाँ पे कैसा होता है ना, पॉइंट जो है ना उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज रहता है. कैसे? नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस जियोग्राफिक फील्ड. नाउ कैसे करेंगे? नाउ एक्स एंड वाई these are nothing but your position in the study area. एक बात ये याद रखना है. Okay, कुछ भी हो सकता है, it can be any particular point but it are the positions in the study area. Okay, then उसका value कैसे denote करोगे? fxy. Okay, what is fxy students? fxy का मतलब होता है value of the field f at location xy. दिस इज नथिंग बट योर जियोग्राफिक फील्ड. अभी जैसे मैंने बोला है, जितना भी स्टडी एरिया है ना, हर एक स्टडी एरिया में अगर तुम लोगों ने पॉइंट लिया तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा ही. दैट इज नथिंग बट योर जियोग्राफिक फील्ड. अभी जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट कैसे डिफर करता है? जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम लोग स्टडी एरिया तो ले रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि हर एक पॉइंट हम लोग जो ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा. Okay, so when we talk about geographic object doesn't guarantee
that every point in the study area will have a particular value. But if I talk about an example about geographic field, every point in the study area will have a particular value. ठीक है students, is everyone okay till this much? Say Yes, ma'am. okay, चलो अभी यहाँ पे we will see different types of geographic field. Now when we talk about geographic field, discrete होता है या फिर continuous होता है. जब भी हम लोग continuous की बात करते हैं ना, तो एक बात याद रखना है, continuous में ना कैसे होता है, जो कभी रुकता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको properly distinguish नहीं कर सकते. Continuous और discrete में कैसे होता है फर्क? I will just show you something over here. कुछ भी whatever type of data if you have, if you talk about continuous and discrete कैसे होता है? let's say this is my study area. ठीक है, अभी मुझे ना उसके अंदर कुछ दिखाना है. I am not able to properly distinguish between two things. So मैंने यहाँ पे क्या किया है, I have marked this particular, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है. Okay, and then I'm coloring it with another color perfectly. But मैंने ना यहाँ पे I cannot properly distinguish कि कौन सा रेड वाला पार्ट है, कौन सा येलो वाला पार्ट है, कौन सा पिंक वाला पार्ट है. So that is nothing but a continuous. Now if I talk about discrete में कैसे होता है, you're taking the study area. Let's say this is your study area. जरूरी नहीं है कि लाइन ही चाहिए, यू कैन यूज एनी पर्टिकुलर फीचर, और तुम लोग ना प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा एक पार्ट है एंड विच इज द अनदर पार्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर. सो यहाँ पे ना एक प्रॉपर डिस्टिंग्विशन रहता है. सो दिस इज नथिंग बट योर दिस इज नथिंग बट योर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. अभी यहाँ पे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट कैसे आएंगे? अभी मैंने टेम्परेचर के बारे में बात की है. टेम्परेचर वाई बिकॉज अभी सपोज लेट्स से वी आर इन मुंबई. ठीक है, अभी मुंबई से आई एम गोइंग टू लेट्स से वी आर गोइंग टू गुजरात. ओके, तो टेम्परेचर ना आसपास ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि मुंबई में टेम्परेचर इज लाइक लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस और गुजरात में इट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नहीं होता है. टेम्परेचर चल रहा है, कभी भी टेम्परेचर रुकेगा कहीं भी जगह पे टेम्परेचर नहीं है ऐसा नहीं होता है. एवरीवेयर द टेम्परेचर इट इज देयर. दैट्स व्हाई इट इज अ फील्ड, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर कहीं पे भी रुकता नहीं है और वो कंटिन्यूसली होते जाता है. क्योंकि कैसे होता है, अभी मुंबई से हम लोग गुजरात जाते हैं तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन रहता है. जरूरी नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस रहेगा, कम डिफरेंस रहता है. 30 यहाँ पे है तो वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं होता है. इट विल बी नियरर. मुंबई में 30 है तो गुजरात में इट विल बी नियरली 25, इट विल बी नियरली 20, बट नॉट लाइक 1 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज कंटिन्यूअस फील्ड. अभी यहाँ पे आते हैं डिस्क्रीट के पास. डिस्क्रीट में क्या है, हम लोग ना इसको डिस्क्रीट जब भी बोलते हैं तो एक प्रॉपर एक स्ट्रेट क्लासिफिकेशन रहता है. ये लैंड इसका है, वो लैंड उसका है. जैसे हम लोग इफ यू गो टू नेटिव और सम अदर प्लेस, तो वहां पे जो लैंड होती है ना उसका एक फेंस लगा दिया जाता है. ये उसका लैंड है, ये इसका लैंड है. फॉर एग्जाम्पल हमारे बिल्डिंग में भी हम जहाँ रहते हैं वहां भी प्रॉपर फेंस लगाया जाता है. में कैसा है, I'll just show it to here. Now, what we are doing with the discrete, I'm taking a study area. ठीक है, अभी क्या करते हैं, डिस्क्रीट है, ये मेरा पूरा लैंड है. लेट्स से गोरेगांव का एरे कॉलोनी मैंने यहाँ पे ले लिया है. तो अभी मुझे बताना है कि क्या क्या चीजें हैं. What will I do is I will try to distinguish it. कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यहाँ पे I am putting a straight line. Okay, then again I am putting another line. And then again I am just putting one more line क्योंकि मुझे डिस्टिंग्विशन करना है. ठीक है, देखो मैंने एक प्रॉपर सेल्स नहीं बनाया है, रोज और कॉलम्स कहीं पे भी यूज नहीं किया क्योंकि ये रास्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग. तो अभी ना व्हाट विल आई डू, यहाँ पे मैं लेबल्स लिख लेती हूँ. दिस इज लेट्स से दिस इज रेसिडेंशियल.
मतलब क्या, यहाँ पे सारे there are all the buildings over here, buildings, schools, colleges, you can come over here. Then यहाँ पे let's say I'm writing forest area, ये एरे कॉलोनी का वो पार्ट है जहाँ पे पूरी जंगल ही जंगल है. Then this is nothing but your industrial area. Here you will find all the industries, factories and stuff. अभी ना मैं यहाँ पे एक दूसरा एरिया ले रही हूँ, कमर्शियल. अंडरस्टैंड, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मतलब सेम नहीं होता है. कमर्शियल में तुम लोग का मॉल्स आ जाता है, थिएटर्स आ जाता है, रेस्टोरेंट्स आ जाता है. These are nothing but your commercial. These are nothing but your industrial. Industrial में you will have all the factories. Okay. Then let's say यहाँ पे ना फार्मिंग हो रहा है. Then let's say यहाँ पे कौन सा एरिया लगा देते हैं हम लोग. Let's say यहाँ पे भी again we have a forest. So ये मेरा एरे का लैंड है, मैंने उसको डिस्टिंग्विश किया है. This is nothing but your discrete. Is everyone okay till this much? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. अभी हम लोग थोड़ा सा जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट, नाउ व्हाट इज जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट? जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो वहां पे 4 थिंग्स आर देयर. व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट वी हैव? हमेशा जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट में 4 चीजें होना कंपल्सरी, वी शुड ऑलवेज हैव. द 4th थिंग इज नथिंग बट योर लोकेशन, देन वी हैव अ शेप, then we have a size, and then we have a orientation. Okay, now when we talk about location, location का मतलब होता है कि वो जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पे located है. Then we have a shape. Okay, shape is nothing but by what form it is. मैं इसका example भी देती हूँ. Then we have a size, and then we have a orientation. ये चारों मिला के जोग्राफिक ऑब्जेक्ट बनता है. अगर मैंने जोग्राफिक फील्ड के बारे में बात की है, so that is nothing but your discrete and continuous. But if I talk about geographic object, that is nothing but your location, shape, size, orientation. Okay, so this is nothing but your location, shape, size and orientation. यहाँ पे example जो दिया है हम लोग पहले वो लेते हैं, and then I will give you a different example. Now when we talk about roads, roads में क्या क्या चीजें आती है? roads का ना मुझे location अगर हम लोग बोले तो where does it end and begin, इसका मतलब क्या होता है? Let's say हम लोग example लेते हैं roads का. ठीक है, जैसे हम लोग अपना एक्सप्रेस हाईवे ले लेते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. Okay, let's say वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसका लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड होगा. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम लिंक रोड. Okay, and it's ending to, let's say, Dahisar. Okay, I'm just giving a random example. जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होता है, because वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे can go till गुजरात as well. ठीक है. Then we have a shape. शेप का मतलब क्या होता है ना, हाउ मेनी लेन्स डज इट हैव. अभी लेन्स का मतलब ना एक बात याद रखना है, लेन्स में ना बहुत वेज आते हैं. 2 वेज हो गए. फर्स्ट तो होगा एक वन डायरेक्शन में, दूसरा होगा दूसरे डायरेक्शन में. ठीक है. First, we will be going from Link Road to Dahisar. That's from, let's say, Andheri to Borivali, and second is from Borivali to Andheri. तो दो ऐसे 2 वेज हो गए. और हर एक वे में ना लेन्स होता है. लेन्स होता है मतलब इफ यू नो पीपल दोज हु आर ड्राइविंग वेरी मच, कैसे होता है, यू नो, एट वन लेन्स में, पर्टिकुलर लेन में स्पीड लिमिट होता है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री. सो दीज आर नथिंग बट उसमें कितने सारे लेन्स है. ओके. Now, when we talk about size, size का मतलब क्या है, कितना दूर तक तुम लोग जा सकते हो. Let's say I can give the size of this Western Express Highway. It can vary. Huh? I'm just giving an example. It's like 150 kilometer. 150 kilometers say from Mumbai we can go to Pune. You know, not necessarily, but from Mumbai to Panvel. So that is nothing but 150 kilometer. Then we have orientation. Orientation का मतलब होता है कौन से direction में travel कर रहे हैं. कौन से डायरेक्शन में, एक बात याद रखनी है, हम लोग आर वी गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आर वी गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दैट इज नथिंग बट योर ओरिएंटेशन.
Okay, so this is nothing but your something known as your geographic object. Is everyone okay till this much, students? Are you there, students all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we will just move ahead. अभी यहाँ पे geographic object के बाद what is the next thing that we should know of? Okay. अभी ना यहाँ पे ना data values के type है. Okay. अभी ना एक बार याद रखना है, there is something known as qualitative and there is something known as quantitative. Now what is qualitative and quantitative, that we will just see over here. Qualitative का हमेशा बात याद रखनी है, it will give you some quality का information. Like let's say I am going to a vegetable market and I am buying some tomatoes. तो tomato का quality, okay, whether it is good tomato, is it ripened tomato, that is nothing but the qualitative. अगर हम लोग quantitative के बारे में बात कर रहे हैं, quantitative मतलब क्या, मैंने 1 किलो में कितने quantity टमाटो लिए हैं, that is nothing but your quantitative. Understand the difference. Qualitative में हम लोग quality में ज्यादा ध्यान देते हैं, okay, and quantitative में we are finding out कि एक quantity में how much items we can take. Okay. Now, when we talk about data value, there is something known as qualitative. Qualitative में we have two things, nominal and ordinal. Nominal को ना और एक नाम से जाना जाता है and that is nothing but your categorical. Okay. Now, nominal में क्या क्या what all things are there? First, let me just tell you, nominal को ना और एक नाम से जाना जाता है categorical. Okay. Now we will just see nominal में क्या क्या आता है. Okay. अभी first let us just take an example about nominal data type. When we talk about nominal data type, in nominal data type, let's say हमारे पास ना soil है, ठीक है? We are taking an example about soil. ठीक है, तुम लोग कुछ भी example ले सकते हो, लेकिन मैंने एक particular example लिया है. Soil को ना मैं तीन parts में divide कर रही हूँ. Okay, fertile, infertile, barren. ठीक है, तो सॉइल्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्टाइल, इनफर्टाइल एंड बैरन. फर्टाइल का मतलब क्या है, इफ यू ग्रो क्रॉप्स यू विल गेट अ वेरी गुड प्रोडक्टिविटी. इनफर्टाइल मतलब यू कैन नॉट गेट प्रोडक्टिविटी इफ द लैंड इज देयर. देन बैरन का मतलब होता है ये कभी इसमें तुम लोग कुछ भी कर लो, ये लैंड के ऊपर यू कैन नॉट ग्रो एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनल, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज. आई विल गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर. If we talk about, let's say, food में we have vegetables, we have non-veg, okay, then we have milk products, okay, then we have, let's say, fruits. इसमें और बहुत सारे टाइप हो गए, अभी फिलहाल तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, ठीक है. So this is nothing but your nominal, ठीक है. Now after nominal, what is the next thing we have? After nominal, the next thing that we have is nothing but your ordinal. Ordinal में क्या क्या चीजें आती है? Ordinal में ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक सीक्वेंस में पुट कर देते हैं. So whenever we talk about ordinal, एक बात याद रखनी है, ordinal में we are putting it in a proper natural sequence. Okay, sequence में हम लोग पुट करते हैं, that is the one thing. And another thing is that ordinal के ऊपर we can never perform any computation. So when we talk about ordinal, we perform sequence, like हम लोग एक sequence में डाल देते हैं and we never allow any computation. Now when we talk about ordinal, अभी जैसे I am talking about marks, किसी को मैंने students exam लिया है, उसको marks दिया है. Marks can be poor, average, good, and then we have another one that is nothing but your very good. So these are nothing but the marks. Same if I talk about your household income,
Okay, it can again be divided into three things like your low, your average, or your high. So here I have made three classes. Okay, so that is nothing but your ordinal. In ordinal, we can never perform any kind of computation, addition, subtraction, multiplication. We can never perform on this. Then we have these both are nothing but your qualitative. That's why यहाँ पे mathematical problems are not there. We don't have any mathematical units in this qualitative. The reason is we are talking about the quality of that product or quality of that particular thing. Okay, so okay, once again I will just go to this nominal and ordinal students. Okay, remember when we are talking about nominal and ordinal, both are qualitative. So in this you will not get any mathematical terms in it. See, यहाँ पे when we are talking about computation, I'm not talking about computation में we are performing calculation. I am talking about इसके ऊपर हम लोग कुछ mathematical operations नहीं perform कर सकते. Getting qualitative में ना हम लोग mathematical operations we cannot perform. ठीक है? So क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल है. जैसे मैं फर्टाइल को, अगर मेरा फर्टाइल लैंड है तो आई कैन नॉट राइट फर्टाइल प्लस 10. इसका कुछ मतलब नहीं है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है वो. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बोला है मार्क्स है, पुअर है, आई कैन नॉट राइट पुअर प्लस 10. पुअर प्लस 10 का मतलब क्या है? पुअर मतलब उसका मुझे मार्क्स नहीं पता है. मार्क्स प्लस 10 डजंट गिव मी एनी प्रॉपर आंसर. So you cannot perform any mathematical computation on both, on your qualitative that is nominal as well as your ordinal. यहाँ तक ठीक है सबको स्टूडेंट्स? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बट एनी डाउट ओवर हियर अपार्ट फ्रॉम दिस? ओके, एक बार हम लोग फिर से चलते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनल, नॉमिनल में ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक कैटेगरी बना देते हैं. सो यहाँ पे ना हमारे पास ना एक सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज होता है. नाउ व्हाट इज नॉन ओवरलैपिंग? जो कभी भी, जैसे अभी मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ. या डिग्री ऑफ फर्टिलिटी कैन वेरी. हाँ, डिग्री ऑफ फर्टिलिटी कैन बी डिफरेंट. आई कैन से द डिग्री ऑफ, अभी अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ फर्टिलिटी इज हाई और इज इट लो or is it poor or is it medium? Let me write medium. अभी देखो मैंने ये हाई, लो और मीडियम बोला है ना, तो ये ऑर्डिनल बन जाता है. ठीक है, अगर मैंने बोला है सॉइल इज फर्टाइल इनफर्टाइल, ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ आई एम सेइंग सॉइल इज फर्टाइल और इनफर्टाइल, सो उसका मैंने क्या बना दिया? क्लासेस बना दिया है. सो दैट इज नथिंग बट योर नॉमिनल. ठीक है, मैंने बोला है डिग्री ऑफ फर्टिलिटी, फर्टाइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत कम फर्टाइल है, बहुत मीडियम फर्टाइल है, तो दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डिनल. इज एवरीवन ओके दिस मच? ठीक है, अभी जैसे नॉमिनल में मैंने बोला था कैटेगरीज आता है, मैं और एक एग्जांपल देती हूँ कैटेगरीज में. ठीक है, कैटेगरीज और डिग्री में ना फर्क होता है. ऑर्डिनल में ना हम लोग डिग्री के बारे में ज्यादा बात करते हैं. जैसे मैं एक स्टूडेंट को देख के बोल रही हूँ उसका डिग्री क्या है. डिग्री मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि उसका एजुकेशन कितना है. आई एम सेइंग ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ पुअर स्टूडेंट और ही इज अ एवरेज स्टूडेंट. तो ऐसे बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज है. कैटेगरीज में क्या क्या, what all things are there in the categories? Let's say I'm taking an example about I can take an example about countries. Okay, countries are divided into different types. जैसे we have a tropical country, then we have cold countries. Tropical में अपना इंडिया आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अवर इंडिया कम्स अंडर ट्रॉपिकल. देन वी हैव अ कोल्ड कंट्रीज, लाइक इफ यू टेक एन एग्जांपल जहाँ पे हमेशा वी हैव कोल्ड, लेट्स से वी विल टेक एन एग्जांपल अबाउट रशिया. ठीक है, नॉट all the time but it's mostly. Then we have a hot countries, like basically we can talk about the
basically the Gulf countries. It can be Dubai or it can be Saudi. So मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये नहीं बताया कि डिग्री नहीं बताया है कि ट्रॉपिकल ज्यादा ट्रॉपिकल है कि कम ट्रॉपिकल है, मैंने उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो दैट इज नॉमिनल. अभी मैं इसी को सेम को ना मैं ऑर्डिनल में कन्वर्ट करती हूँ, बट आई एम राइटिंग डिग्री. इंडिया इज वेरी हाई ट्रॉपिकल, very let's say I am writing high, very high, average, low, very low. I can say India is very, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है कौन से टाइप का ट्रॉपिकल है, हाई है, वेरी हाई है, एवरेज है या फिर वेरी लो है. सो दिस इज नथिंग बट योर ऑर्डिनल. हम लोग इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते. मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है, whenever we talk about mathematical operations, it's nothing but your addition, subtraction, multiplication and division. इसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो ये हो गया क्वालिटेटिव. अभी नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव. व्हाट इज क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव में ना हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग के पास क्वांटिटेटिव में ना दो चीजें हैं. फर्स्ट इज इंटरवल एंड नेक्स्ट इज रेशियो. ओके, now when we talk about interval, interval में ना ज्यादा से ज्यादा क्या यूज होता है? So now when we talk about interval, interval में what happens is that they allow for simple computation. Simple computation like only addition and subtraction. बाकी it will not allow anything. Okay, it will not allow multiplication, division. जैसे the best example जो दिया गया है, that is temperature of Mumbai is twice temperature of let's say temperature of किसका ले लेते हैं, temperature of UK or let's say London. ओके, सो ट्वाइस लिया है मैंने यहाँ पे, कुछ तो एक मैथमेटिकल यूनिट यूज किया है, दैट इज ट्वाइस है, थ्राइस है. सो दिस इज नथिंग बट माय इंटरवल. रेशियो होता है ना, रेशियो, रेशियो इज नथिंग बट इट्स ऑलवेज इन द पॉइंट फॉर्मेट. ओके, एक बात याद रखना है, इंटरवल नेवर हैव जीरो वैल्यू. जीरो का कुछ भी टर्म उसमें नहीं रहता है. बट रेशियो कैन बी एवरीथिंग. It can have zero value, can have zero value. Okay, it can have multiplication. Okay, and it can perform division. मतलब वो addition, subtraction, multiplication, division सब कुछ कर सकता है. Is everyone okay till this much, students? Yes, ma'am. Okay, अभी मैं MCQ start कर रही हूँ. Remember, students, whenever you are getting the MCQ, read the MCQ, write the answer in your chat box. ठीक है? Very easy question. Okay. I want everyone to participate in this, okay? Okay, this is pretty easy. So the answer is A, that is Geographic Information System. Okay, now. Okay, now I have give the second question. Read the question and tell me what is the answer of this. Okay, this is also pretty easy. Spatial data will always mean positional values.
ग्राफिकल वैल्यू कुछ ऐसा है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए अलग डेटा टाइप है जो हम लोग यूनिट 3 और 4 में देखेंगे. देन डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो द आंसर इज 2. ओके, read the question and tell me what is the answer of this. Okay, so the answer for this is geodatabase. Special databases are also known as geodatabase. Mono database ऐसा कुछ है नहीं. Concurrent database DBMS में है जो हम लोग को सिलेबस में नहीं है. ठीक है, then read the question and tell me what is the next thing over here. What is the answer of this? Think and tell me, हाँ. ये थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है यहाँ पे. Okay. What is the answer of this, students? Okay. Okay. So I'm just giving the answer for this. एक बात याद रखनी है. I'm just explaining this answer for this. Okay. जब भी हम लोग okay, the answer is 3. That is both are true. ये क्यों है मैं बताती हूँ यहाँ पे. Just 1 second. Yeah, क्यों है ना यहाँ पे मैं बताती हूँ. Answer is 3. That is why. Because fields जो है ना उसमें natural phenomena था. जिससे when we talk about field, जैसे मैंने बोला था geographic field discrete and continuous. We were talking about temperature. We were talking about जो land दिया है उसको classification करना है. So this is nothing but your geographic field. Discrete मतलब we were talking about land, उसको classify किया था. Industrial है, residential है, so that was a natural. When we talk about continuous, continuous में we have a temperature. Then we talk about object. Object में we have a man-made. Man-made का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे road का example लिया था. Road was an example of a geographic object. So यहाँ पे the answer for this is nothing but basically 3, that is both natural and man-made. Okay, natural are field and man-made are nothing but your objects. ठीक है, I'm going to the next now. ठीक है, tell me what is the next thing over here. इसका आंसर बताओ.
So the answer for this is value can be determined because अगर geographic phenomena है, geographic field है, तो मैंने बोला था definition every field जितना भी geographic field है, every field has got some value in it. Okay, so that is nothing but your geographic field over here. Then okay, read the question and tell me what is the answer of this. Okay. So what is the answer of the students? Okay, I'm just telling you. The answer for this is just 1 second, students. The answer for this is nothing but 4, which was perfectly right over here. Students, I'm waiting for you all people to answer it. Okay? Because there are some people, those who are not giving the answer. यहाँ पे we have, let's say, 20 people. So the answer for this is nothing but answer 4. Why? Because हम लोग discrete field के बारे में बात करते हैं ना, तो discrete field ना यहाँ पे देखो, first option देखो, mutually exclusive bounded part. मतलब क्या होता है ना, it will properly, जैसे मैंने land का example दिया था, okay, in the land हमने क्या किया है, उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर नहीं जा रहा है, एक लैंड दूसरे लैंड के अंदर नहीं जा रहा है, दैट इज नथिंग बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. देन लैंड क्लासिफिकेशन, व्हाट इज लैंड क्लासिफिकेशन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था. एंड देन बाउंडेड फीचर, बाउंडेड मतलब क्या, वी आर क्लियरली डिफरेंशिएटिंग. सो द आंसर इज 4. ओके, नाउ आई विल जस्ट राइट वन एमसीक्यू ओवर हियर. ओके, जस्ट वन एमसीक्यू आई एम जस्ट राइटिंग, इसका आंसर मुझे बता देना, ठीक है? जस्ट लेट मी राइट इट डाउन. Just 1 second, 1 minute. Neil, okay, beta, I'm just coming to the MCQ. Yeah. You're asking natural thing can be object in geo object. You are correct. Okay. अभी मैं यहाँ पे जरा जाती हूँ. देखो, हमने क्या किया है, जो नेचुरल होता है ना, जैसे मैन मेड, मैं बराबर से प्रॉपर्ली बता रही हूँ. Natural thing are always your field and man-made object are always your object. Natural are always your field and man-made, जैसे roads, buildings and all are nothing but your object. Okay? यहाँ पे
नेचुरल के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, ओके, तो हम लोग जो नेचुरल दिया गया है उसी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट इट विल ऑलवेज कम इन द फील्ड. हम लोग ने कुछ बनाया नहीं है. जैसे मैंने ये नहीं बोला है ये बिल्डिंग का मेजरमेंट निकालो, ये बिल्डिंग इज अ मैन मेड थिंग, उसका मैंने मेजरमेंट निकाला है. सो दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Neil, is it okay or anything that more you want to ask? Neil, are you there? Okay, is your doubt clear, beta? Okay, I'm just writing one MCQ. इसका आंसर बता देना. See, I'm talking about two things. हाँ, एक तो है एक स्पेशल डेटाबेस और एक दूसरा है डेटाबेस. Just nothing but your RDBMS. Okay. Okay, tell me what is the answer of this. Read the question and tell me. फिर आगे चलते हैं. Ma'am, second one. Yeah, who said right now the second one? Okay, just 1 second. Huh? Was it? Okay, okay, okay. Nandini. Okay. अभी ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टिंग्विश बताती थी. किसी को और को आंसर देना है कि किसी ने सबने दे दिया है? बीच बीच में कोई कोई लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, बीच में उन लोग सो रहे हैं आई गेस, या फिर उन लोग मोबाइल ऑन रख के या फिर स्काइप ऑन रख के दे आर गोइंग अवे. ठीक है, मैं आंसर बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ठीक है, अभी एक बात याद रखनी है, यहाँ पे हर एक ऑप्शन जो है ना उसका कुछ ना कुछ रीजन है. एक बात याद रखना है, इट विल स्टोर द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. अगर मैंने बोला है रोज एंड कॉलम्स ना, तो इसका जो एट्रीब्यूट डेटा है ना, दैट इट कैन स्टोर इन रोज एंड कॉलम्स. तो फर्स्ट ऑप्शन होने का चांसेस है. ठीक है. स्पेशल डेटा स्टोर्स लोकेशन इंफॉर्मेशन इन स्ट्रिंग. नेवर. लोकेशन जो है ना वो हमेशा कैसा रहता है, हम लोग ना आगे चल के देखने वाले हैं. लोकेशन कभी भी हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करने वाले, ये डेटाबेस नहीं है. मैंने बोला है यहाँ पे डिफरेंस क्या है स्पेशल डेटाबेस और डेटाबेस के बीच में. नॉर्मल डेटाबेस में तुम लोग जो Yes. या लोकेशन होता है that you can store it in a string format, but ये special database है. Special database में you will never store location information in string. उसके लिए एक अलग data type है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ. ठीक है. Then third option, special database also stores extra feature in image format. Extra feature मतलब क्या होता है?
एक्स्ट्रा फीचर मतलब उसका कुछ और कुछ डेटा रहेगा, जैसे उसका नेम, उसका हाइट, उसका विड्थ, उसका कलर क्या है, बिल्डिंग का कलर क्या है, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है। कभी भी वो इमेज फॉर्मेट में स्टोर नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल ऑलवेज बी इन रोज एंड कॉलम्स। अभी फोर्थ ऑप्शन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्पेशल डेटा के बेस के ऊपर कभी हम लोग रेगुलर एसक्यूएल यूज नहीं करेंगे, एक स्पेशलाइज एसक्यूएल यूज करेंगे, दैट इज यू नो दैट इज QGIS के अंदर है, वो हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। सो तीनों 2, 3, 4 इज नॉट वैलिड। सो अगर हम लोग सोचे जाए तो स्पेशल डेटाबेस कैन स्टोर द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, बट एक बात याद रखनी है, जो डेटा वो स्टोर करेगा ना वो सिर्फ एट्रीब्यूट डेटा रहेगा, ठीक है, एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप। वो स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप में आगे चल के तुम लोग को बताती, ठीक है। सो ऑप्शन 1 is the right answer, बाकी सब is not valid over here. Is everyone okay till this, my students? Abhi we will move ahead. Everyone okay? Yes, yes, ma'am. Okay. Now, अभी यहाँ पे देखना टेस्लेशन we have. अभी ना आगे हम लोग अभी थोड़ा एडवांस हो रहे हैं। अभी ना टेस्लेशन है। टेस्लेशन का मतलब क्या होता है ना, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। टेस्लेशन का मतलब क्या होता है? Okay. Now, whenever we talk about tessellation, टेस्लेशन का मतलब क्या होता है? You're partitioning the space into mutually exclusive cells. मतलब क्या होता है, हम लोग ना पूरा पार्टीशन करते हैं। देखो रोज एंड कॉलम्स में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स में ना क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में क्या होता है, वी हैव फिक्स्ड रो से, मतलब रोज एंड कॉलम्स में कैसा रहता है ना, ऑल द सेल्स हैव अ सेम साइज एंड सेम विड्थ, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू पेंट, अभी मैं बताती हूँ टेस्लेशन का एक्चुअल मतलब कैसे होता है। आई एम टेकिंग अगेन अ स्क्वायर, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आई एम मेकिंग टेस्लेशन, मतलब मैं क्या कर रही हूँ उसको, एज आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन, it will divide the space, it will partition the space into cells. So what will I do, you know, I'm just moving over here, okay, then I will just move here and then अभी देखो ये ना एक टेस्लेशन है, लेकिन इसका ना कुछ हर एक सेल का वैल्यूज, हर एक सेल का साइज जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक सेल का साइज थोड़ा अलग है, दूसरे सेल का साइज अलग है, ये सारे सेल्स है, लेकिन इसको बोलते हैं irregular tessellation. If you see, because cell का size are differing, यहाँ पे we have different cell का size, यहाँ पे we have different cells का size, so this is known as your irregular tessellation, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं regular tessellation के बारे में। So now I'm just writing it over here, ठीक है, and now I'm just making a tessellation. देखो अभी तक हम लोग टेस्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा टॉपिक आ रहा ही नहीं है। Here we have a cells. अभी देखो ये कैसे बन रहा है, एक प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स में बन रहा है, हर एक रो एंड हर एक कॉलम का वैल्यूज आर सिमिलर, ठीक है। सो जो सेल का जो साइज है ना वो पूरे इसमें ना पूरे रास्टर में सेम है। सो दिस इज नोन एज योर रेगुलर टेस्लेशन। सो इरेगुलर टेस्लेशन होता है जहां पे सेल का साइज यूनिफॉर्म नहीं होता है, और रेगुलर टेस्लेशन होता है। अभी तुम लोग अगर पीपीटी में देखोगे तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट इज अ रेगुलर टेस्लेशन, सेकेंड भी रेगुलर है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं ले लिया है,
ये एक हेक्सागन है. थर्ड इज अ ट्रायंगल. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्लेशन. उस पे अपने को जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेगुलर टेस्लेशन. व्हाई? बिकॉज रेगुलर टेस्लेशन is known as your raster. So tessellation जब भी हम लोग बात करेंगे तो tessellation is of two types, irregular and regular. Irregular में क्या है? Cell size are not uniform. Okay, now when we talk about regular, what is regular? Cell size are uniform. Is everyone okay till this much? Yes, ma'am. Okay, Abhi. Okay, there is a example that we will do. Just 1 second before going on. Okay, अभी हम लोग थोड़ा सा ये एग्जाम्पल कर लेते हैं. क्वार्टरी का एग्जाम्पल है, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, ट्रस्ट मी. बट ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई एम टीचिंग जीआईएस फ्रॉम लास्ट 10 years और ये क्वेश्चन हमेशा आता है. सो अभी ये एमसीक्यूज में कैसे आएगा वो मैं बाद में बता दी. फर्स्ट वी विल जस्ट सॉल्व दिस थिंग. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. ठीक है, अभी ना यहाँ पे ना लीफ है, नॉन लीफ है, क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर वी विल जस्ट सी वन बाय वन. नाउ व्हाट विल आई डू इज, पहले तो हम लोग देखते हैं कि कितने नोड्स है. ओके, नाउ व्हाट ऑल नोड्स आर देयर. If you see over here, there are basically 8 rows and 8 columns. So how much cells we have? We have 8 rows and 8 columns. 8 into 8 will give me 16 cells. ठीक है, ये जो है ना रेगुलर है. हाँ, टेस्लेशन. अभी कैसा है यहाँ पे? Ma'am, 64. Yeah. I'm so sorry, huh? Now just pay attention over here. कैसे किया है यहाँ पे हमने. Now if I go to it, यहाँ पे we have basically total number of cells that is 8 rows and 8 columns. अभी उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, so पहले तो this is my one part, okay, and this is my another part. If you see the cursor properly तो समझ में आ जाएगा. So हम लोग क्या कर रहे हैं, we are dividing it up into 4 quadrants. If you people remember your quadrant ka part, so I'm just writing it over here something. If we talk about quadrant ka part, okay, हम लोग कैसे जाएंगे? This is what we will do. हम लोग ने पूरा equal parts में कर दिया है. So if I right now go over here,
दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दो पार्ट हुए हैं, दिस वन, देन दिस वन, then this one, and then this one. ठीक है? So basically what I have done is that we have divided up into basically into something known as 4-4 का columns, 4-4 का cells. So आगे हम लोग और डिवाइड करने वाले हैं, बट फर्स्ट हमने क्या किया है, दिस इज माय basically over here 4/4, this is 4/4, this is 4/4 and this is 4/4. हमेशा ना इवन नंबर का ही सेल्स आएगा, ऑड नंबर का नहीं आता है लेकिन अपने को सिलेबस में नहीं आएगा. ठीक है? नाउ हाउ इट इज डन, अभी मैं यहाँ पे कुछ तो लिख रही हूँ. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ओके, दिस इज नॉर्थ वेस्ट. Just 1 second. Just this is northwest. Student, 1 minute. So this is basically your 1 second. Let me just make some changes in this. So first we will just go over here. If I talk about this, this becomes your something known as your northwest, and which is denoted by 0. ठीक है? Then we have over here northeast, which is denoted by 3. Why? Because we are moving in the anti-clockwise direction. So this becomes something known as your southwest, which is denoted by 1 over here, because we are going from this northwest to southwest. And then we have something known as a southeast over here, which is denoted by 2. So basically we are going in the anti-clockwise direction, starting from northwest, which is denoted by 0, southwest, which is denoted by 1, southeast, which is denoted by 2, and northeast, which is denoted by 3. So this is how you will go. I am purposefully writing this because students make mistake in this. अभी तक उनको ईस्ट वेस्ट नहीं समझ में आता है, and they still make a mistake in latitude longitude. इसलिए मैं यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ये. अभी आगे चलते हैं. अभी ना यहाँ पे और एक टर्म है, लीफ एंड नॉन लीफ. ठीक है? लीफ का मतलब ये जो गोल वाला पार्ट है. रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट लीफ, जहां पे भी स्क्वायर है, ओके, इफ आई हैव अ स्मॉल स्क्वायर, ओके, दैट स्मॉल स्क्वायर इज नथिंग बट योर नॉन लीफ नोड. नॉन लीफ नोड का मतलब क्या होता है? इट विल एक्सपांड मोर, इट विल एक्सपांड फर्दर. देन नॉन लीफ के बाद ना हमारे पास और एक छोटा सा सर्कल भी है. 2 सर्कल है, पहले हम लोग देख लेते हैं ये सिंपल सर्कल के पास. दिस सिंपल सर्कल इज नोन एज योर लीफ नोड. ओके, लीफ नोड, इट विल नॉट एक्सपांड फर्दर, मतलब वो खत्म हो गया है. अभी लीफ नोड और नॉन लीफ नोड में भी ना यहाँ पे कलर्स है. If you see this, there are colors over here. Student, don't try to go in and come out because ये थोड़ा सा अगर बीच में जाते आते रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है? यहाँ पे देखो सर्कल्स में ना कुछ कुछ व्हाइट सर्कल है और कुछ कुछ ब्लैक है. हम लोग व्हाइट और ब्लैक ले लेते, तुम लोग व्हाइट और ग्रे कुछ भी ले, लेकिन 2 कलर्स है, दैट यू रिमेम्बर. ठीक है? सो वन इज लीफ नोड, वन इज व्हाइट लीफ नोड, एंड अनदर इज नथिंग बट योर ग्रे लीफ नोड. ठीक है? अभी ये ग्रे और व्हाइट के बीच का क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं. सो नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी हम लोग पहले तो डिवाइडिंग इट अप दिस इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. अभी हम लोग पहले इस पे जाते हैं.
If you remember this one we will go. Okay. Okay. So now इसमें से भी ना हम लोग ये वाला पार्ट ले लेंगे. So if I talk about this, right now we are concentrating only on this part जहां पे मेरा कर्सर है. ठीक है. उसमें से भी ना मैं ये सिर्फ ये फर्स्ट वाला सेल ले लूंगी. Okay, I'm taking just this part. ठीक है. So if you see, first मैंने क्या किया है, ये हमारा ओरिजिनल नॉन लीफ नोड है. स्क्वायर इसलिए दिया है क्योंकि वो और आगे एक्सपांड होने वाला है. सो फर्स्ट वाला जो है, दिस इज वी हैव डिनोटेड बाय नॉर्थ वेस्ट, दिस वी हैव डिनोटेड बाय साउथ वेस्ट. देखो जो स्क्वायर है ना वो एक ही कलर में, दैट इज व्हाइट. ठीक है. दिस इज डिनोटेड बाय साउथ ईस्ट एंड दिस इज डिनोटेड बाय नॉर्थ ईस्ट. इज एवरीवन ओके टिल दिस मच? अभी हम लोग ये वाले पार्ट में जाते हैं. वी विल ओनली गो टू, okay, we will only first concentrate on this part, that is northwest part. अभी ये northwest part में ये वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं. अभी देखना ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारे सेल्स का कलर सेम है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इसका जो फर्स्ट नोड बनेगा वो एक सर्कल बनेगा और सर्कल में व्हाइट कलर होगा. क्यों व्हाइट कलर होगा? क्योंकि यहाँ पे सारे सेल्स का वैल्यू व्हाइट है. Is everyone okay till this much? Say yes or no, students. Are you there? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, please repeat. Okay, I will repeat. अभी देखो, what I have done is that पहले तो हमारा ये 4 parts था. ठीक है. अभी हमने क्या किया है, what we have done basically over here is, फोर पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है. सो दिस बिकम्स माय नॉर्थ वेस्ट पार्ट. पे अटेंशन टू वेयर द कर्सर इज. दिस बिकम्स माय नॉर्थ वेस्ट पार्ट. दिस बिकम्स माय साउथ वेस्ट पार्ट. दिस बिकम्स माय साउथ ईस्ट पार्ट. दिस बिकम्स माय नॉर्थ ईस्ट पार्ट. ठीक है. तो यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है. इज एवरीवन ओके टिल दिस मच? अभी Yes, आगे चलते हैं. अभी ये वाले पार्ट में कंसंट्रेट करते हैं. ठीक है. बाकी पार्ट को भूल जाओ. कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस पार्ट. ठीक है. ओके. नाउ इफ आई कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट? द वन विच आई हैव सेलेक्टेड ओवर हियर. अभी इसमें भी ना ये जो फर्स्ट है, वेयर माय कर्सर इज राइट नाउ, देखो यहाँ पे ना सारे सेल्स का वैल्यू सेम है. ठीक है. ऑल द सेल्स, 4 सेल्स आर व्हाइट. सो यहाँ पे ना एक दिस फर्स्ट सर्कल विल हैव व्हाइट कलर. ये सर्कल है, लीफ है, क्योंकि उसके आगे एक्सपांड नहीं होगा. हमेशा वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ यू रिमेम्बर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कैसे, मैंने जैसे बोला था, इन दिस फॉर्मेट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड एंडिंग एट दिस. ठीक है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस? यहाँ पे देख लेते हैं. अभी ये फर्स्ट का कर्सर का मैंने फर्स्ट सेल बना दिया. सेकेंड का देखो, अभी यहाँ पे what will happen? This part over here, all the cell values are same. So यहाँ पे second में I will write a simple white leaf. Then यहाँ पे जाएंगे. If you remember, we are going in anti-clockwise. यहाँ पे सारे cells का color are grey. So मैंने यहाँ पे एक leaf बनाया है, उसका grey color है. अभी यहाँ पे जाते हैं. ठीक है. Now I am just putting this one. मैं इसको select करके रख रही हूँ. I hope you can see the selection. Can you people see the selection, students? अभी
यहाँ पे देखना, तीन सेल का कलर व्हाइट है और फोर्थ सेल का कलर ब्लैक है, तो नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड और करेंगे। तो यहाँ पे ना ये नॉन लीफ आ जाएगा, क्योंकि हर एक सेल का, एक सेल ऐसा है जिसका कलर अलग है। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऑल द सेल्स डोंट हैव अ सेम कलर। सो यहाँ पे फर्स्ट सेल का वैल्यू इज व्हाइट, दैट आई विल राइट इट ओवर हियर। सेकेंड सेल का वैल्यू इज राइट, दैट आई विल राइट इट ओवर हियर। ओके, लीफ है क्योंकि एक एक सेल बचा है तो वो तो लीफ ही बनना है। थर्ड सेल that is gray, that is mentioned over here. Fourth cell that is white, that is mentioned over here. So this becomes my first northwest. Northwest मतलब कौन सा part? ये वाला part. This is nothing but my northwest. Is everyone okay to this much? Say yes or no. ये समझेगा तो आगे समझेगा, हाँ आगे. Is everyone okay? Yes, ma'am. Important cheese, a very important thing that you need to remember is we are going in this format, starting from here and ending till here. सर्कल कैसे जा रहा है ना वो याद रखोगे ना, तो बाकी तो प्रॉब्लम इजी है, कुछ है नहीं, डिफिकल्टी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ओके, इट इज गोइंग फ्रॉम दिस एंड एंडिंग एट दिस। अभी अपना वो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट हो गया, दिस वन पार्ट वाला डन। नाउ वी विल गो टू साउथ वेस्ट वाला पार्ट। एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नाउ ये हमारा सिलेक्शन है, उसमें हमने 4 क्वाड्रेंट पहले से मतलब बना लिए हैं। तो हम लोग के पास पहले तो टोटल बड़े 4 क्वाड्रेंट्स थे, उसको हमने फिर से और बना दिए हैं। ठीक है, अभी कैसे करेंगे? नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस ओवर हियर, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स ओवर हियर। अभी जहां पे मेरा फर्स्ट कर्सर है, दिस इज माय फर्स्ट कर्सर, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, साउथ वेस्ट इज डिनोटेड बाय 1। अभी फर्स्ट में जाते हैं। देखो, साउथ वेस्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेल्स का कलर अलग अलग है। सो सेल्स का कलर अलग है तो हमारे पास आएगा नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड में जहां पे मैंने अभी कर्सर रखा है स्टूडेंट्स, ओके, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल का वैल्यू इज व्हाइट, सो यहाँ पे आ गया फर्स्ट सेल सेकेंड सेल का व्हाइट कलर। देन थर्ड सेल का वैल्यू इज ग्रे एंड फोर्थ सेल का वैल्यू इज व्हाइट। Is it clear, students? So this is nothing but my this part over here. Okay, then we will just go over here. अभी ये वाला part मैंने हाईलाइट करके रखा है। I hope you can see the selection over here. Okay, यहाँ पे देखो 3 सेल्स का कलर अलग अलग है, तो मतलब वो नॉन लीफी आएगा, मतलब स्क्वायर ही बनेगा। फर्स्ट सेल का वैल्यू इज व्हाइट, सेकेंड सेल का वैल्यू इज व्हाइट, थर्ड सेल का वैल्यू इज व्हाइट एंड फोर्थ सेल का वैल्यू इज ग्रे। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, सेल्स का कलर अलग अलग है तो नॉन लीफ ही आएगा। फर्स्ट सेल का वैल्यू इज ग्रे, सेकेंड सेल का वैल्यू इज व्हाइट, थर्ड सेल का वैल्यू इज व्हाइट एंड फोर्थ सेल का वैल्यू इज ग्रे। दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर। अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सारे सेल्स का वैल्यू आर सेम, सो वी विल जस्ट राइट अ सिंगल लीफ नोड। सेल्स का वैल्यू सेम है तो हम लोग डायरेक्टली ये गोल लीफ नोड बना देते हैं। सेल्स का वैल्यू वो क्वाड्रेंट में अलग है, देन वी मेक अ नॉन लीफ नोड दैट इज अ स्क्वायर। इज एवरीवन ओके टिल दिस मच? Now we will go to the southeast part and this part over here, southeast part. ठीक है, अभी इसमें भी ये हमारा पार्ट है। अभी थोड़ा ध्यान दे दो स्टूडेंट्स। मैम, हाँ मैम साउथ ईस्ट पार्ट में भी वहां पे तो फिर मतलब एक पार्ट उसमें उसका ब्लैक ब्लैक है, तो देन हम हाँ देखो ना वहां बेटा, पे व्हाइट क्यों किए फर्स्ट? नहीं नहीं तुम यहाँ पे ध्यान दे दो बेटा, ये वाला साउथ ईस्ट इज दिस, देखो ये वाला। ओके मैम। ओके,
I know it's very confusing because ये है ही, it's very easy but सिर्फ confusing है, और सिर्फ directions याद रखोगे तो it will do wonders. ठीक है? So see, I am again placing my cursor over here. See, this is my southeast. मेरा cursor जहाँ पे है वहां पे ध्यान दे दो. This is my first quadrant. सारे cells का color gray है, तो मैंने यहाँ पे gray बना दिया है. Single leaf. Then I am going to second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में दो सेल्स का कलर ग्रे है और दो सेल्स व्हाइट. सो जैसे जैसे वो है ना, जैसे डायरेक्शन है वैसे ही बनाना है. तो फर्स्ट सेल का कलर इज ग्रे, सेकेंड सेल का कलर इज व्हाइट, दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर. थर्ड सेल का कलर इज व्हाइट एंड फोर्थ सेल का कलर इज ग्रे, दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन्ड. नाउ वी विल गो टू थर्ड सेल. ओके, नाउ इफ यू सी दिस थर्ड क्वाड्रेंट, एक सेल का वैल्यू इज ग्रे एंड बाकी सारे सेल्स का वैल्यू इज व्हाइट. So what will I do over here is that first cell का value is gray and बाकी तीनों cells का value is gray. Then we go to this fourth quadrant. What we will do is दो cells का value is gray and दो cells का value is white. So यहाँ पे two cells का value is gray and two cells का value is white. So this is nothing but your southeast. Is everyone okay till this much? Students, are you there? Yes, ma'am. ओके, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे. ठीक है, अभी कैसे बनाया हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सेल्स का वैल्यू इज ग्रे, तो हमने सिर्फ लीफ निकाला. सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे सेल्स का वैल्यू इज ग्रे, सो एक सिर्फ लीफ क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में दो ग्रे और दो व्हाइट है, सो यहाँ पे दो ग्रे एंड टू व्हाइट. ठीक है, एंड फोर्थ इज ऑल व्हाइट, सो लीफ नोड. सो दिस इज नथिंग बट योर क्वाड ट्री. इज एवरीवन ओके? अभी मैं फिर से एक बार यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट लेट मी टेक दिस. ठीक है, तो हम लोग ने पहले कैसे किया? फर्स्ट what we first did was, ठीक है, ये हमने 4 quadrants बना लिया. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, this, then this, then this, and then this. Pay attention to the cursor. Okay. Then what is the next thing I will do? इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए. We went to first quadrant over here. उसको भी हमने डिवाइड कर दिया. ओके, मैं यहाँ पे नंबरिंग देती हूँ तो तुम लोग को कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा. 0, then 1, then 2, then 3. हर एक क्वाड्रेंट में चेक किया सेल्स का वैल्यू सेम है क्या डिफरेंट. देन आफ्टर दैट वी वेंट टू दिस ओवर हियर, this over here, then here 0, 1, 2, 3. Then we go over here again. We will just start over here. Then 0, then okay, just 1 second. Now we will go over here. Okay, इतना तक सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. अभी इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे? We will go over here, then here, then if I talk about this, it is 0, it is 1, it is 2, it is 3. Then after this, where will I go?
I will go from here to here. Then here it is 0. Here it is 1. Here it is 2. And here it is 3. So कैसे start करेंगे? We will start from the 0. Then we will start with this 1. Then we will start with this 2. And then we will do with this 3. This is how we will move. Okay? Any doubt over here? फिर से एक बार मैं यहाँ पे PPT on करके रख देती हूँ. Students, any doubt over here? No, ma'am. Okay. Have everyone understood this quad tree? Yes. Okay. Now, okay. Now we will do. Yes, it is 8 by 8 का matrix. Theory 16 by 16 matrix का भी रहता है, but this is 8 by 8 का matrix. Okay. ये कॉलेज में किया है स्टूडेंट्स? Okay. Okay. चलो, No, we'll ma'am. just move ahead to the next, that is our. अभी इसके ऊपर MCQs क्या आएगा, पहले हम लोग वो बता देते हैं. MCQs में ना कैसे आता है, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज कुछ कुछ कॉलेज में तो ये किया ही रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब करेंगे, नहीं किया रहेगा तो भी. अभी इसके ऊपर MCQs क्या आएगा, दे विल गिव यू दिस, ये रास्टर का टेबल. जैसे हर साल क्या होता था, ये रास्टर दिया जाता था एंड द क्वेश्चन वाज राइट अ क्वाड ट्री ऑफ दिस रास्टर. कभी कभी क्या रहता था, ये क्वाड ट्री दिया जाता था एंड फ्रॉम दिस क्वाड ट्री यू नीड टू मेक अ रास्टर, बट दैट वाज अ वेरी रेयर क्वेश्चन. हर साल क्वेश्चन क्या आता था, ये क्वाड ट्री रास्टर दिया जाता था एंड यू आर सपोज्ड टू मेक दिस क्वाड ट्री. ठीक है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे उन लोग, दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू दिस रास्टर एंड दे विल आस्क यू टू मेक अ क्वाड ट्री. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो रिमेंबर, ऑप्शंस में क्या रहेगा, ऑप्शंस में they will give you this quad tree. Different quad trees will be there. Okay. Or else what they can do is that they can give you some numbers. Okay, वो numbers क्या है मैं बताती हूँ, but they will give you different quad trees, और वो quad trees में से तुम लोग को आंसर सेलेक्ट करना है. Is it clear students? Okay, now अभी इसमें से नंबर्स कैसे चूज करना है वो मैं बताती हूँ. ठीक है. अभी नंबर्स जब भी चूज करने जाओगे ना, रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर चूजिंग द नंबर, रिमेंबर ऐसे सेल्स को चूज करना है जहां पे ग्रे है. ठीक है. ग्रे वाले सेल्स कौन से है वो चूज करना है. देखो फर्स्ट इसमें ग्रे कहाँ पे है, ये वाला पार्ट. ठीक है. लेकिन ये जो है ना वो किसके अंदर है, 0